Very good morning, friends, and welcome to my channel. Check out my look after I visit the pond park. I came here at around 7:35, but I'm recording the video at around 8:20. I was just sitting down and relaxing, watching my video back to back, which I am uploading right now. And as I said, as I do my prayers every day, I'm upgrading and upleveling myself. It is actually working out. Seriously. I should start this आम आदमी की कहानी एक segment and catch up with people and start speaking to them. This lady जिसकी मैं कभी कभी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ. Now she walked up to me. Now this lady is very very घमंडी, right? चर्च की लेडी है, चर्च की सीनियर सिटीजन की कुछ प्रेसिडेंट कुछ तो थी, and she's quite well known, and she was very proud. Today when I was sitting on my bench, she walked up to me and she was talking. वो ये पार्क में कभी कभी आती है क्योंकि वो अशोक नगर उस साइड में ही वहाँ पे ही ट्रैक पे चलती रहती है. She used to be very fat, but then she started intermittent fasting, dieting, exercising. So she's lost a lot of weight and she's looking really nice. And she dresses up very well for her age. She's in her 60s, but she keeps herself very well after she has lost weight. And I think she shifted also to this Ashok Nagar. तो जो पास एक्सपायर हो गई ना, वो जो लेडी थी जिसको मैं जानती थी इन द मंथ अभी संडे को, तो उसकी वो क्लोज़ फ्रेंड थी क्योंकि वो आसपास ही बिल्डिंग में रहते हैं और मॉर्निंग में जब चर्च में आते तो उनके गाड़ी में आती थी वो जाते वक्त. ये बहुत ही प्राउड लेडी है. टुडे दैट लेडी वॉकड अप टू मी एंड शी सेड, हाय, हाउ आर यू? आई हैव सीन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. यू डोंट कम टू द चर्च? क्योंकि नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आई यूज़ टू सिंग इन द मॉर्निंग मास जिसे बोलते थे, मैं सिंग करती थी वहाँ पर. ट्रस्ट मी, दैट वाज 1 year ago. अब कितने लोग सिंग करते हैं, किसको ये याद रखते हैं, ये नहीं बॉदर करते. लेकिन बिकॉज एज आई सेड, आई एम ओकेजनली सीन, I'm hardly available, and I used to be very active many years ago. Many years ago I was very very active. So सिर्फ 2 महीने मैंने sing किया, and that too when my mom had fallen down, had a dislocation. तो उसको प्रेयर करने के लिए भी मैं जाती थी और मैंने अपनी भक्ति भगवान को I used to do it for my mother कि वो जल्दी से ठीक हो जाए या मुझे शक्ति दे, क्योंकि ये आसपास की जनता, उसके फ्लाइंग मंकीज़ मुझे परेशान कर रहे हैं. तो इसके लिए भी मैं प्रे कर रही थी. एंड आई यूज़ टू लिटरली सिंग, एंड आई यूज़ टू सिंग विद दिस क्रेजी अनदर फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ फीमेल. कहती तो अपने आप को पढ़ी लिखी है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चरर, उसने पूरी जगह अपने आप को बदनाम किया है. नाउ शी नॉट स्पॉटेड एनीवेयर. मैंने बोला इसने सारी जगह ख़राब किया. तो शी केम एंड शी आस्क्ड मी, व्हाट अबाउट दैट लेडी? आई सेड, सी दैट लेडी, आई एम नॉट रियली इन टच, और आई डोंट नो हर मच एज अ पर्सन, बट एज अ कॉयर थिंग जहाँ पे हम लोग when we used to sing, she was pretty good because she was very disciplined and we used to practice. और वो गाने एक पूरे महीने के गाने वो ऑलरेडी मार्क करती थी, and she would decide beforehand, and that's the reason why it used to come out that well. She sang, y'all used to sing pretty well. I said, yeah, because there was a lot of hard work, because we used to practice and she used to choose those songs beforehand. And I said, anyway, she's not a morning. She said, I said, anyway, that lady was never a morning person and she has some health issues. Saying what? I said, she has sinus and all, and she was never comfortable in the morning. I said, she was in other groups. She's saying, yeah, she's not spotted anywhere. Is she still there over here? Is she still living in Ashok Nagar, the same building where this lady is? I said, maybe, because ये जो लेडी थी ना, जो मेरे साथ सिंग करती थी, जो बहुत घमंड है उसको, शी वॉज़ वेरी प्राउड अबाउट हर सेल्फ, और उसको ज़बान पे लगाम नहीं था. मतलब शी हैड नो सेंस ऑफ टॉकिंग, मतलब कहीं पर भी कैसे भी बोल देती थी. शी वेरी प्राउड. मेरे साथ भी वो बहुत सारा एटीट्यूड दिखाने लगी. मैंने बोला, हरामी औरत, तेरी इंग्लिश स्पीकिंग तेरे पास रख, मेरे पे एटीट्यूड नहीं झाड़ने का.
सो बट आई डिड नॉट कन्फ्रंट हर और एनीथिंग. मैंने उसको हल्के हाथ से उसकी जेलसी, इनसिक्योरिटी, हेट्रेड बर्दा, क्योंकि आई यूज्ड टू कम इन डिफरेंट कुर्ताज. माई लुक वॉज सो डिफरेंट, सो पीपल विल रिमेंबर मी फॉर माई कुर्ताज, राइट. मैं ऐसे नहीं कि मैं शैबी जाऊँगी. इफ़ आई गो फॉर मॉर्निंग प्रार्थना करने जाऊँगी, आई वुड विदाउट चप्पल्स, आई स्टैंड नियर द माइक एंड सिंग. फिर मेरी कुछ हरकतें बहुत डिफरेंट रहती थी, मतलब आई एम नॉट लाइक दिस अदर पीपल. और मैं नहा धो के, साफ़ सुथरा होके, मैं तो अपना बाथरूम भी धो के, बाल्टियाँ धो के, अपने आप को धो के, नहा धो के, फ्रेश कपड़े, सेट ऑफ कपड़े पहन के, परफ्यूम, मतलब वेल ग्रूम्ड, अच्छे, मतलब आई वोंट से मेकअप, लिपस्टिक और काजल लगा. सो आई वॉज, पीपल हैव अ रिकॉल वैल्यू बिकॉज ऑफ माई, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ माई स्टाइल स्टेटमेंट, बिकॉज ऑफ माई डिफरेंट नेचर. नॉट लाइक दीज नॉर्मल कैथलिक्स. तो कैसे उनके कैसे अभी सुबह सुबह है तो कैसे भी आ जाएंगे. मैंने बोला नहीं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो दिल से करनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए. सो इसलिए दैट आउटस्टैंडिंग ये रहता था ना, तो पीपल यूज टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी. इवन जब मैं जाती थी ना चर्च का, आ जाते थे मुझे, सिर्फ मुझे छूने के लिए या मेरे हाय हेलो करने के लिए, बिकॉज ऑफ माई कुर्ता, बिकॉज आई लुक वेरी ब्राइट एंड शाइनिंग. जबकि मेरा दिल और मेरा दिमाग ऐसा मरा हुआ था, क्योंकि ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थी. शी हैड देन उसका फ्लाइंग मंकी केम डाउन. इतना तमाशा आए दिन लोग देखने. मैंने बोला क्या चल रहा है, ये फुटेज ले रही है वो फीमेल, और क्या तमाशे कर रही है, घूमने जा रही है. नाम है माँ की सेवा, माँ का पूरा हड़प करने के लिए. कहीं लुढ़क जाएगी तो पूरा टेक ओवर करने के लिए. सो यू कैन इमेजिन व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू. फिर ये भी ड्रामेबाजी कर रही है, फिर उसकी दूसरी फ्लाइंग मंकी आ गई, फिर इसके रिश्तेदारों के आए दिन कॉल, फिर ये सारे लोग टपकते थे घर के अंदर. सो मुझे एक मिनट का चैन नहीं था. इन दैट सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो मैंने अपने वीडियोज़ बनाए, मैंने अपने वीडियोज़ अपलोड किए. आई यूज्ड टू कम हियर, फाइंड दैट टाइम. फिर घर का, तो जब वो फ्लाइंग मंकी, मैंने लगा अभी किचन संभाल, अब कर घर का काम, करके दिखा मुझे. और सेवा करना सीनियर सिटीजन्स की इजी नहीं होती है. और सामने से फुटेज ले रही है. कोई आया आगे बैठ के दिखाएगी कि यू नो सारे गैजेट्स ऑन करके, लैपटॉप, ये वो सारे फ़ोन सामने रह के, एज शी इज़ डूइंग सम लॉट्स ऑफ वर्क. करना कुछ नहीं है. एंड जैसे लोग आते, मामी विल हैव सम मटन सूप, एक लाफा चढ़ाने का मन करता है. चूतिया. ये सिर्फ एक 10 दिन का नाटक रहेगा, बट मेरे ही सर पे आ जाए. कैन यू इमेजिन ऐसे लोग, हाउ फेक दैट वाज, हाउ स्टूपिड दैट वाज. मैंने बोला इतना ही शौक है तो चली जाए इसके साथ. हर चीज़ में टेक ओवर करना. देखो, व्हेन यू आर इनसिक्योर्ड एंड यू आर फेक ना, यू विल बी वेरी रेस्टलेस एंड एंग्शियस. मुझे दिखावा करने की आदत नहीं थी. मुझे जो करना था मैंने कर लिया. एंड आई वॉज इन द बैकग्राउंड. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे वाह वाह बोले या क्या क्या बोले. ये भी नाटक करती थी, मेरा सुन के आ गई. मैंने बोला दोनों, मैंने बोला भगवान, इस औरत ये इतना मुझे तकलीफ़ दे रही है. आई यूज़ टू सिंग फ्रॉम माई हार्ट. सो दैट वॉज इन नवंबर एंड दिसंबर 23. फिर जनवरी से मैं खुद बीमार पड़ने लगी, क्योंकि मेरा ब्रेक डाउन होने लगा. तो तुम सोचो, दिस लेडी हु इज़ सो प्राउड walks up to me and talks to me, what happened, you stopped singing, what happened, you're not coming to the church. जबकि वो 1 साल पहले था. अभी भी मैं जाती हूँ, बट वेरी ओकेजनली आई जस्ट विजिट. सो तुम सोचो रिकॉल वैल्यू कितनी होती है. अगर तुम हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते तो कोई तुम्हें याद नहीं रखता है. एंड आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ माई ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो पीपल रिमेंबर मी. मुझे लोग जस्ट मेरा ड्रेसिंग देख के, वाव, लवली कुर्ता, लवली कलर, क्योंकि मैं इतना फ्रेश होके जाती थी, टिप टॉप बन के जाती थी. मैंने आई एम ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम विद इन, क्योंकि ये लेडी मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही है. देन आई यूज्ड टू कम, घर पे आती थी, मैं नाश्ता बनाती थी उसके लिए. क्या खाएगी? मैं डोसा खाऊंगी आज. मैंने बोला मम्मी, डोंट बी सच अ डिफ़िकल्ट पर्सन. वो डोसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट डोंट बी सो, यू हैव टू एडजस्ट समटाइम्स ना. अभी ये डोसा बन सकता है क्या? नहीं, मैं वही खाऊंगी.
तो मैंने बोला ठीक है बाहर से ऑर्डर करके लेके आ, नहीं मुझे घर का खाना है. सो शी यूज टू पर्पसली बी अ बिची काइंड ऑफ अ पर्सन. वरना उसको ब्रेड बटर भी चलता है, और जब वो बनाती है और उसका मन नहीं करता है तो तभी हम लोग ब्रेड बटर भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं. देन आई सेड सेकेंड टाइम जब मैं बनाऊंगी मैं पराठा या कुछ तो बनाऊंगी, चपाती कुछ तो अच्छा कुछ बनाऊंगी मैं. सो आई से तो मैं उसको हमेशा पूछती थी, मेनू पूछती थी द डे बिफोर इन द नाइट. मैं कल ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ, या मैं रवा बना रही हूँ, पोहा बता के जाती थी. मैं उसको बताती थी, मैं उसको इन्फॉर्म करती थी. तो कल इज़ इट ओके विद यू. नहीं तो क्या करेगी, मैं नहीं खाऊंगी, फिर इसकी फ्लाइंग मंकी आ गई है, फिर इन लोग ड्रामे करते हैं किचन के अंदर. मैंने बोला या तो किचन में ड्रामेबाजी नहीं करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. मुझे तो वैसे भी नाश्ता बनाना है, खाएगी नहीं खाएगी इट्स ओके, बट मैं बनाती थी. ऐसे से ड्रामे, नहीं मैं नहीं खाऊंगी. मैंने बोला इट्स ओके, डजंट मैटर, मेरा काम है बनाना, मेरा काम है बर्तन धोना. मैंने बोला जिसने भी किचन के अंदर गया ना वो बर्तन भी साफ करो अभी अंदर जाके. नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ शील बिहेव. हु इज़ देयर, कौन है मेरा टेक केयर करने के लिए, कौन करेगा. मैंने बोला जब तू गिर के मैं तुझे अस्पताल में तुम्हारे साइड खड़ी थी, सारा मैंने अरेंज किया, फाइनेंसेस अरेंज किए, ये किया वो किया. शुडंट बी सेइंग दैट. मैंने उसको ये भी बोला तू जो पैसे ऐसे दबा के रखती है ना, तू लेके नहीं जाएगी ऊपर. तुम्हारे बेनिफिट के लिए वो पैसे नहीं निकल रहे हैं, वो ऊपर वाला देख रहा है. मैंने बोला तूने मुझे जिससे तकलीफ दी है. एंड यू नो व्हाट, मेरे मुंह से निकला, मैंने बोला अभी मैंने चर्च में गाना शुरू कर दिया है, तुझे अभी गिरना था. तो जब वो गिर गई दैट डिडंट स्टॉप. इनफैक्ट मेरी जो भक्ति है वो दो तीन गुना 200 गुना और बढ़ गई. आई नेवर गिव अप. उसका मॉर्निंग का तो आफ्टर ब्रेकफास्ट ही होता था ना. मैंने बोला अभी करना क्या है, बाकी के लोग आ गए हैं ना, बाकी के लोग पूरी रात पिक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, लेटे पड़े हैं, खुद का उठना 8:30 बजे है, तो तुम माँ की सेवा कैसे करोगे. सब दिखावा होता है. जो लोग बोलते ना माँ की सेवा करना क्या होता है, स्पेशली दिस इरिटेटिंग लेडी, दिस अनोइंग क्रूअल टॉक्सिक लेडी, कितनी तकलीफ़ देती है वो मुझे, स्पेशली व्हेन शी वाज इन द हॉस्पिटल. हर चीज़ में कॉपरेट नहीं करेगी, किसी चीज़ में कॉपरेट नहीं करेगी, इरिटेट करेगी. फिर बोलेगी मुझे व्हेन आई गॉट समथिंग फॉर हर टू ईट, शी सेइंग तू ये लेके आई. मैंने बोला मैंने तुझसे 10 बार पूछा क्या खाएगी, तूने क्या बोला सैंडविच खाएगी. सैंडविच लेके आऊँगी तो मेरे लिए ये लेके आई. मतलब मैं तुझसे कैसे डील करूँ, क्या बात करूँ. बाकी के लोग तुझे बिस्किट भी खिलाते तो आराम से खा लेती है, बाकी लोग कुछ भी रबिश भी खिलाते तो खा लेती है, बट व्हेन इट कम्स टू शांति यू हैव टू बिहेव डिफ़िकल्ट. मैंने बोला ये लोग अपनी गृहस्थी कैसे चलाते हैं, ये औरतें इतने क्रैपी, इतने क्रिंजी, इतने चीज़ी, इतने कॉनी, हर चीज़ में ड्रामा ड्रामा ड्रामा. मैं कैरी नहीं करती थी, बट मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी. दैट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वॉज अ हेल ऑफ द टाइम फॉर मी. ये 4-5 महीने आई वॉज मैं मर चुकी थी, मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी. आई डोंट थिंक इफ़ शी वॉज अलाइव आई वुड बी हैंगिंग अराउंड विद हर. मेरी तो पक्का अगर मैं उसके साथ एक छत के साथ में रह रहती ना, मैं तो मर ही जाती, पत्थर बन गई थी मैं तो. आई थिंक आई वुड बी ब्रेन डेड एंड देन आई वुड बी डेड वेरी सून.
मैंने उसको क्या कहा था कि मैंने ये कहा था, जैसे मेरे डैडी की अर्थी इस घर से गई है ना, इस घर से मेरी भी अर्थी उठेगी, तुझे तभी चैन आ जाएगा। इस घर से मैं ऐसे नहीं निकलूँगी, मेरी डेड बॉडी निकलेगी। मैंने बोला हो गया तुझे चैन, आ गया है चैन, मेरी मौत से तुझे चैन मिल जाएगी। अपनी बेटी को अभी ख़त्म कर दे तू। सो एनीथिंग रिलेटिंग टू डेथ रियली ट्रिगर्स मी क्वाइट अ लॉट। तो इस लेडी को कैंसर, बोन कैंसर था सिंस अगस्त, दैट जो संडे को एक्सपायर हो गई ना। तो आई थिंक हाँ, हस्बैंड हैड मेंटली मेड अप हिज माइंड कि अभी मेरी वाइफ कुछ ही दिनों की है, लाइक कुछ ही महीनों की है, क्योंकि आई थिंक उसका रिलैप्स हो गया। दैट्स व्हाट दिस लेडी वाज टेलिंग मी, हुम आई मेट एट द पार्क, दिस आंटी 14 ईयर्स अगो उसको आ गया, उसको फिर से आ गया। मे बी शी वॉज बेड रिडन और समथिंग। जब तुम्हें इनक्योरेबल डिजीजेस होते हैं, तुम्हारा माइंड सेट होता है कि ये पर्सन कुछ चंद महीनों के लिए है करके। मुझे MI का नोट 14 लाना है। इना एंड नीता सेन गेम या वेरी गुड सजेशंस देते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, आज ये मेरा चैनल चल रहा है इज़ बिकॉज ऑफ माई सपोर्टर्स, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। अगर इफ़ आई एम इरिटेटेड एंड इफ़ आई एम सेइंग समथिंग, उसका एक रीज़न होता है। इमेजिन पीपल फ्लडिंग माई, जस्ट सेंडिंग मी द सेम स्टूपिड मैसेजेस ऑल द टाइम। मतलब एवरी वीडियो दे आर गोइंग, ओ आई लव यू, आई ओनली वॉन्ट फ्रेंडशिप फ्रॉम यू। इमेजिन यू आर डूइंग सच सीरियस कॉन्टेंट, ओके। तुम इतने, तुम्हारी आई हैव इवन gone on record to give details of my journey. It's not been easy for me, right? So I have actually described कि मैंने कितने oppositions face किए हैं। मैंने बहुत सारी नौटंकी देखी है, बहुत सारा क्रिंजीनेस देखा है मेरे रियल लाइफ में, सी मेरा ऑरा इतना ज़्यादा, आई एम टेलिंग यू पीपल, तुम्हारे हाथ में पैसे हो ना हो, तुम कौन से भी स्टेट, अगर तुम, मैं इतनी, यू थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर आई विल बी फाइन, मैं फाइन नहीं थी, बट आई लुक लाइक अ फ्रेश फ्लावर, बिकॉज वो भक्ति इतनी तेज थी। So much so that people are walking up to me now and they asking me, you're not coming to the church. जबकि वो टाइम पे भी मैं गई थी ना, that was a break of 5 years. 5 years. 5 years के बाद मैंने ये शुरू किया था। I'm not a very, I was never into all these things. तो मैंने थोड़ा सा भी काम किया है ना, वो क्वालिटी का काम किया है कि लोग आके मुझसे, द मोस्ट घमंडी पीपल कम एंड टॉक, मतलब कुछ मैंने अच्छा ही किया होगा। सो काम ऐसा हो, इतना चोकस हो दैट पीपल कम एंड टॉक टू यू। और आजकल मैं इतनी स्टाइलिश लगती हूँ और अच्छी दिखती हूँ, पीपल वॉक अप एंड टॉक टू मी बिकॉज ऑफ माई स्टाइल स्टेटमेंट, माई कॉन्फिडेंस, मे बी माई जेनरोसिटी। वो लिविंग लेजेंड जो मुंह बना रहे, नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी, नाउ ही सीज मी ऑन द स्टेज। नहीं, आप वहीं पे रहिए, जस्ट सी द चेंज, आप वहीं पे रहिए, वहीं पे रहिए। वैसे बोलते हैं वो। So have you seen the difference? I have noticed that difference in my life. I went through a lot of ridicule, mockery, opposition,
suppression, exclusion, isolation, minimization, trivialization, not only from my family members के आसपास, because of my thank you to my mother. And I was praying to God. मैंने बोला how do I undo this? मैं कैसे करूँगी ये? इतने सालों का उसने इतना षड्यंत्र, इतना माल मसाला पूरा फैला के रायता रखा हुआ है, उसको मैं क्लियर आउट नहीं कर पा रही हूँ. मेरी ब्रांडिंग इतनी ज़ीरो है एक्चुअली. बट टुडे व्हेन दिस लेडी वॉकड अप टू मी एंड शी स्पोक टू मी, आई सेड या दैट्स पीपल थिंक हाईली ऑफ मी, दे थिंक बेटर ऑफ मी. जबकि मुझे यकीन नहीं आता था क्योंकि इसने इतना रायता फैला के रखा हुआ था. शोर मचाना और क्या करना और क्या, मतलब वो मुझे हमेशा साइड ट्रैक करके रखती थी. तो आई शुड नॉट बी इन द फ्रंट और फोर फ्रंट, या मैं डिसअपियर हो जाऊँ, या मैं कहीं आई शुड बी फेडिंग इन द बैकग्राउंड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. I had a wonderful auto rickshaw ride yesterday. Both the time. Second time I did not speak because मेरे bestie ने बोला कि कैसे जाएगी. मैंने बोला बस से जाऊँगी, no problem. जबकि मेरा मन बस में जाने का नहीं था. Not that the BST buses they are quite good. आजकल तो काफ़ी अच्छे स्पेशियस वाले हैं. बट मेरा ही मन नहीं कर रहा था बस में बैठने का. You know what he said? चल तेरे लिए मैं रिक्शा बुक करता हूँ. मैंने बोला ठीक है. लास्ट टाइम ऑल्सो उसने मुझे ऊबर बुक किया था. ऐसे कैसे जाएंगे, पहले हम लोग बस के पास आ गए. तो नहीं सेड नहीं बस नहीं मिल रही. मैंने बोला डबल हो जाएगा. एनीथिंग विच विल गो टू अंधेरी कुर्रा रोड, आई टेक दैट बस. क्योंकि बैंड्रा वेस्ट से अंधेरी ईस्ट जाने के लिए देर आर बसेस बट दे आर वेरी लिमिटेड. आई सेड 422 जाती है, बट आई थिंक यू हैव टू कैच इट फ्रॉम बैंड्रा स्टेशन का डेपो में से जाती है वो 422. वी वर एट SV रोड ओनली. फिर मैंने सोचा दिमाग के अंदर, डीप डाउन आई वाज थिंकिंग नॉट बस. फिर उसने क्या किया, उसने तुरंत मेरे लिए रिक्शा, ऊबर वाली रिक्शा कोई बुक कर दी. इससे अच्छा तो ऐसे ही जाना, नो नीड ऑफ बस एंड ऑल दैट. मुझे पता था वो करता, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आई केम डाउन, बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव दैट आई केम डाउन. बिकॉज एवरी टाइम पास में मैंने बहुत नाटक नखरा किया कि नहीं, he would say come down ना शांति, and I would say no to him all the time. एक बार तो उसने बोला मैं रिक्शा का पैसा दे दूँ तो आ जा. That's how I landed like a cheapo. ऐसी बात नहीं है, not because he was giving रिक्शा का पैसा. I didn't want to move my ass itself. मुझे जाने का मन ही नहीं करता था ना. इसू से तू आ जाना इस साइड में, स्पाइस में जाएंगे. ही वुड से नहीं मैं नहीं आ सकता. सो भी ऐसे होके हम लोग ना कभी कभी मिलते भी नहीं थे. और मैं उसको हमेशा बोलती थी मुझे मॉर्निंग में बता ना. मॉर्निंग में अगर मुझे बताएगा तो आई विल बी मोर क्लियर कि मुझे किस तरह से आना है. इस बार मैंने उसको कहा था वंस यू कम टू अंधेरी देन द सेकेंड टाइम आई विल कम टू बैंड्रा. तो आई सेड सी आई केप्ट माई प्रॉमिस. इस बार भी मैंने सोचा कि poor fellow is putting in, उसने he has done so much for me in my life. I should not behave like a bitch. मुझे कोई बोलता है ना, मैं बोलती हूँ मैं अपने बेस्टी को he has done so much more than these रिश्तेदार्स and family members. एक ऐसा दोस्त सबके लाइफ में हूँ. मैं रिश्तेदार के वैसे भी टच में नहीं हूँ. मैं वेकेशन पे गई थी बिकॉज अगर मेरी मॉम होती तो मैं नहीं जाती. सिंस आई वॉज एल्डेस्ट और वो एक फैमिली फंक्शन था तो मैं गई. ही वॉज ऑल सेट. हाँ मैं तो जा रही हूँ, मैं 8 दिन के लिए जा रही हूँ. जा चली जा. मुझे अच्छी खासी नींद आई.
मुझे नहीं अच्छा लगा वो सर्वर का एटीट्यूड, एंड सिगड़ी द वे ही वाज सर्विंग अस एंड ऑल दैट, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो पूरा प्लेट में ऐसे डंप करा था, ही वाज वेरी बोर्ड एंड ही वाज वेरी डिसइंटरेस्टेड एंड सी व्हेन यू आर एक्चुअली प्रेइंग एंड सेइंग ना मेरी लाइफ अपग्रेड होनी चाहिए, अप लेवल होनी चाहिए, वो हो जाती है। एंड जो वो लिविंग लेजेंड जो इरिटेबल होके बोलते थे क्यों, नाउ ही सेइंग तुम वहीं रहो, स्टेज वहीं पे रहो। See, I always use my Ayurvedic oil. When there is plates ना in these इस हाथ में मुझे झटके लगते हैं सब सुबह सुबह समटाइम्स व्हेन आई टच टैप एंड ऑल दैट ना, तो करंट लग जाता है बिकॉज इज ऑलरेडी मेटल इन माई हैंड ना। क्या मैंने दुख नहीं सहा, या मैंने बीमारियां नहीं सही, या मैंने फाइनेंशियल लॉसेस नहीं सहे, या बिट्रेयल्स नहीं सहे, षड्यंत्र, कंस्पिरेसी, स्कैंडल्स, रूमर्स, गॉसिप नहीं सहा मैंने? wasn't I a victim of all this? I was trauma bonded with my mom. वो होता है, वो विक्टिम्स के साथ ऐसा होता है, जीना भी इनके साथ और मरना भी इनके साथ। एंड दैट वो होता है ना, वो दे कीप यू हुक्ड, इट्स अ साइकिल, लव बॉम्बिंग, ग्रूमिंग, डिस्कार्ड एंड डंपिंग, idealization. First they idealize you, then they love bomb you, then they groom you accordingly, then they hook you into it, and then they dump you and discard you. This is a cycle. Then they start hoovering. The minute they dump you, you start going away from, they start hoovering. My mother used to, उसको हाथ से कहीं छूट ना जाऊँ मैंने बोला कैसी औरत है, एक दिन का सुख, एक मिनट का सुख इसके साथ नहीं है। जैसे मैं उससे दूर दूर जा रही हूँ, शी इज़ होवरिंग लाइक दिस vulture on a dead meat, or like a hyena next to a dead meat. हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, चाहे मैं घर में कैद ही क्यों ना रहूं, पड़ी रहूं, कोने में रहूं। When people act smart ना, we will do it, I'll say okay do it, go ahead and do it, मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए, do it। मैं नहीं ऐसे भाग भाग के बोलती हूँ ये क्यों किया, मैं करूँगी। मैं मेरी मॉम को भी नहीं, वो ओवर एक्टिंग करती थी ना, ऐसे डू इट, गो अहेड एंड डू इट। कितना टाइम और कितने टाइम, ओवर एक्टिंग नहीं करने के, लेट मी सी हाउ मच कैन यू मैनेज दिस, गो अहेड एंड डू इट। मैं नहीं बोलूँगी मैं करती हूँ बर्तन, फिर शी यूज्ड टू गिव अप, वो गिव अप करती थी। शी यूज्ड टू प्रिटेंड कि मुझे शांति की ज़रूरत नहीं है, उसके सर्विसेज और उसकी अवेलेबिलिटी शू टेक मी फॉर ग्रांटेड, मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं कितनी फिट एंड फाइन हूँ। आई रिमेंबर द डे शी फेल्ट प्रायर, शी वॉज बोस्टिंग एंड ब्रैगिंग, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आई एम सो दिस। मैंने बोला जैसे शी ब्रैग्ड एंड शी वॉज एक्टिंग वेरी प्राउड एंड बोस्टफुल, द नेक्स्ट डे शी फेल्ट आउट। वो बोलते ना घमंड। So when I see people bragging, I felt like telling them कि you never know. whether पैसे का घमंड या किसी चीज़ का भी घमंड, बहुत ज़्यादा उसने मुझे दुख दिया है। So much so I used to tell her कि यहाँ मिलिए ऊपर मत मिलना। There's no, it's not about she spending on me or whatever. What is the point of she taking care of me and spending on me? जब मैं ज़िंदा हूँ, मैंने उसको बोलती थी तुम्हें मेरी खुशियाँ रास नहीं आती, मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, तुझसे देखा नहीं जाता, मैं मिजरेबल हूँ, यू आर हैप्पी, मैं दुखी हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, तू हैप्पी रहती है कि कहीं मुझे और कुछ हो जाए, सो दैट यू कैन पाउंस एंड गिव मी मोर मेडिसिन एंड what is that syndrome called? Munchkin some syndrome it is, where the parents are happy when their kids are ill,
समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर वो उनके ऊपर खर्चा भी करने के लिए रेडी है, लेकिन इफ़ दे आर हेल्दी वो खाने पीने में विघ्न डालते रहेंगे। उस फीमेल ने कितनी तकलीफ उठाई होगी ना। You know, this lady has gone into a hiding, that female who used to sing, that so-called lecturer. इतनी proud about her English and her knowledge and I don't know, singing skills. Even if she was average, she knew how to brag about herself. उसने शायद सबके साथ पंगे लिए होंगे by now because of her tongue and her bad manners. कहने के लिए टीचर है, लेकिन इस हरामी औरत सबके साथ सबका खाना ख़राब किया होगा। वेरी कनिंग फीमेल एंड सच अ बिगेस्ट गॉसिप मॉन्गर। पढ़ी लिखी लेडी, हाँ पढ़ी लिखी लेडी, और ऊपर से वाहियात कपड़े पहनती थी। वाई शी इज़ टू बी जेलस। एक तो उसके बाल ऐसे थे, सो एक शी वॉज इन हर 60s, तो शी used to feel very proud about herself that she's fit. But जब मैं I used to stand in front of her, she used to look like one भिखमंगी, because वो वही टी शर्ट और वो रेड पैंट्स या ऐसे ऑरेंज पैंट वही पहन के आती थी, और सड़े हुए चेहरा था, सड़ा हुआ चेहरा था। एंड शी यूज्ड टू सी मी एंड शी यूज्ड टू गो, यू आर सो रिच एंड वेल टू डू, यू आर स्टेइंग इन दिस प्लेस। यही अशोक नगर, यही वो बड़े से बहुत सी बड़ी सी बिल्डिंग वहीं पर रहती है ये। इतने बड़े इसमें रहकर भी भिखमंगी गिरी, सेम टी शर्ट, सेम वही सड़े हुए कपड़े, कोई उसमें ना रंगत है, ना स्टाइल है, ना कुछ। इट्स सच अ टर्न ऑफ। और तुम्हारी ज़बान पे लगाम नहीं है, और तुम हर किसी को अपना स्टूडेंट समझते हो क्या? बात करने की तमीज़ नहीं है, यहाँ की बात वहाँ करोगी तो यू विल बी। आज तुझे चेहरा छुपा के बैठना पड़ रहा है। आते ही जैसे ये आ गई कि पता नहीं कहीं टाउन साइड में रहती थी, यहाँ पे शिफ्ट हो गई वो 2 साल पहले। आते ही शी वॉज ऑल ओवर द प्लेस। लेक्चरर एंड इंग्लिश स्पीकिंग एंड ट्रेनिंग पीपल, ये सब ना ऑल ओवर द प्लेस। शी मेड हर सेल्फ हाईली अवेलेबल एवरीवेयर। फिर लोग परेशान हो गए विद हर अनोइंग एटीट्यूड, हॉरेबल एटीट्यूड, बैड मैनर्स। खाना तो कभी बनाती नहीं थी। मैंने बोला सिंगल लेडी क्या करती है? ब्रेड बटर खाती है, ब्रेड एंड एग खाती है। आई वॉज प्रैक्टिकली सरप्राइज्ड। नो, आई एम नॉट अ किचन पर्सन। भैंचोद, यू आर रिटायर्ड, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यू आर अ स्पिंस्टर, यू आर अनमैरिड, तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, खुद के लिए तो कुछ कर। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में अकेले रहना क्या होता है? और इतना पैसा, एंड शी इज सो कंजूस ना। 5 रुपया भी, शी वुड नेवर कैरी कैश। आई वॉन्ट टू बाई ब्रेड, सो आई सेड ओके, मेरे पास पैसे होते थे, आई गिव यू लेटर। करोड़पति फीमेल, पेंशन आती है इसको, आईफोन लेके घूमती है जो इसके भाई ने दिया है, बैग में छुपाती थी वो। करोड़पति, आई एम टॉकिंग। 5 रुपया भी नहीं ये हाथ में है, कैश कैरी ही नहीं करती है। हाउ स्टूपिड इज़ दैट? और खाना तो बना, और कहीं पार्टी अभी गेट टुगेदर, चर्च में कितने सारे ये होते हैं ना, तो आए केक या पैटिस कुछ ना कुछ मिलता रहता है। ये 2-2, 3-3 खाएगी, और मीठे का शौक है, ये भी खाएगी वो भी खाएगी। बिकॉज आई हैव सीन इट, जब मैं इसके साथ सॉन्ग्स प्रैक्टिस करती थी ना इसी गार्डन में बैठ के, ये बहुत लीचड़गिरी करती थी। बिकॉज यू नो मैं अपना ब्रेकफास्ट करके आती थी, फिर भी मैं कुछ कैरी करती थी, लाइक बिस्किट्स एंड ब्रेड, और अगर मैंने डोसा बनाया है। एंड आई हैव सीन हर, शी नेवर ऑफर्ड इवन वंस दैट आई विल गेट समथिंग। ओ लवली शांति, यू गॉट दिस, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट? मैंने बोला ये क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस लेडी? सो वंस आई टोल्ड हर
कुछ वो बना रही है. सर व्हाई डोंट यू गेट समथिंग फ्रॉम योर होम समटाइम्स. तो किसी के बच्चे हुए पैटिस लेके आई थी. मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आने दे उसको घर से. वॉट एवर आई गेट ना आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बट उसकी वो ग्लटनी ग्रीडी हैबिट जिससे कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी. तुम मैं पूरा का पूरा रख ले, आई हैव नो प्रॉब्लम्स. ये तो खाली बिस्किट ब्रेड है, कोई बात नहीं रख ले, बट एटलीस्ट अप्रिशिएट समटाइम्स. ऊपर से तू मेरी गॉसिपिंग भी कर रही है, मुझे एटीट्यूड भी दिखा रही है, आंखें भी दिखा रही है, भैंचोद कहीं की. तो तेरा चीज़ मुझे चाहिए नहीं, लेकिन उसे जब एटीट्यूड थ्रो करना शुरू किया, मेरे बारे में गॉसिप करना शुरू किया, व्हेन शी स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक यू नो बॉसिंग ओवर मी, मैंने बोला भैंडी नाउ यू विल गेट समथिंग फ्रॉम योर होम. तू लेके आएगी अपने घर से. मैंने बोला मैं खाऊंगी नहीं, लेकिन मैं अपने ये वॉचमैन को बांट दूंगी या किसी गरीब को दे दूंगी. So people don't like, be careful of how you present yourself to people. It's only when you give you're receiving it. I hope you understand. आज पॉन्ड पार्क पे मेरी क्यों है इतना ये. मैंने just because he said come and become the member, मैं मुंह उठा के नहीं गई. मुझे नहीं पसंद आया कोई भी चीज़ वहाँ का. I hope you understand. And you're a lady, you're so well to do, and you're an elderly lady. तू एक ग्रैंड मदर की एज की है, एंड तू मटक रही है, फ्लर्ट कर रही है और फालतूगिरी कर रही है. दैट डे एट दैट टाइम आई वॉज ब्रेकिंग डाउन, क्योंकि मेरे एक्स के साथ मेरे काफ़ी अप एंड डाउन होते थे ना. तो उसने वहाँ पर भी कुछ बहुत गंदा गेम खेला है. उसने उसके भाई को जाके कुछ तो बोला है. मैं एक बार रो रही थी, मैं कुछ हुआ था हमारे बीच में, तो उसने मुझे पूछा क्या हुआ, तो मेरे मुंह से निकल गया. सो शी वेंट एंड टोल्ड हिज ब्रदर. अभी मुझे समझ में आ गया कि रिश्ते इतने और ज़्यादा क्यों बिगड़े. फिर इस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया. ही थॉट दैट आई एम, मेरा मुंह सब जगह खुल रहा है एंड मैं उसको बदनाम कर रही हूँ ना. तो भैंचोद ने मुझे कितना तकलीफ़ दिया बिकॉज ऑफ दिस फकिंग बिच. इसने जाके या तो उसके डायरेक्टली उसके भाई को कुछ कहा है. पूरा खाना खराब कर दिया. दिस फीमेल इज अनदर वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ टेरिबल थिंग. He has a very good car because I think he had dropped all these people. I remember his car. He has a fantastic car. इसकी कार फैंटास्टिक भी नहीं रहेगी. एटीट्यूड उसका वो है, गाड़ी 5 लाख की है, इसका एटीट्यूड 50 लाख का है, इसलिए वो गाड़ी फैंटास्टिक लग रही थी. तो शी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ गॉसिप एंड रूमर रिगार्डिंग्स मी. तो ये बंदा, इसका दिमाग आउट होगा ना, ही रैप हर फेस. If he won't wrap her face, he'll send somebody to wrap her face. Mental. If you're living in the town ना, तुम्हें नहीं पता है कि अंधेरी के लोग कैसे हैं. So don't go around making yourself so available and cheap everywhere and gossip. इसलिए वो आजकल मुँह छुपा रही है. इसने भी बोला कि 2 महीने से नहीं दिखाई दे रही, मतलब she's gone in hiding. There will be people wanting to fight with her or slap her or something. I myself wanted to slap her. एक बार उसने मुझे बोला I'm afraid of you, you might slap me, which I really wanted to slap her because उसने ये पूरा खाना ख़राब कर दिया था. Now you got it. उसने मुझे खुद कहा I'm afraid of you. वो डरती थी मुझे देख के, क्योंकि उसने मेरा बहुत गॉसिपिंग की थी, बहुत नाम ख़राब किया था. बंदे को पता चलेगा ना, उसको पता चल गया, वो उसका जीना हराम कर देगा. वो सटली, मतलब ये उसका नाम भी नहीं आएगा, तो किसी और के कंधे पे बंदूक चलाएगा एंड शी नॉट बी स्पॉटेड. और ये हो गया एंड शी इज़ नॉट इवन
in circulation. One word against him, he'll teach her a big lesson. I said she deserves it. मैं खुद ही बोलती teach her a lesson. ये औरत का मुंह हर जगह खुल रहा है. एक औरत होके बेकार की बातें कर रही है, बकवास बातें कर रही है. The way she used to flirt with men was disgusting and all the time paranoid. Oh, I can't come to the park. यहाँ से सांप आएंगे. ये क्यों फॉलो कर रहा है, वो क्यों. मैंने बोला क्यों हमें कोई फॉलो कर. I said why are you so paranoid all the time? Stupid. ऐसा ही होता है जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते, तुम करियर के पीछे भागते रहते हो एंड यू आर नॉट रियल इन योर लाइफ. तो बुढ़ापे में ये औरतें पागल हो जाती है. दे लूज देयर माइंड्स. डोंट एंड अप बीइंग लाइक दीज ओल्ड हैग्स जिनका कुछ है नहीं लाइफ में. सिर्फ पैसे है, एक बड़ा सा घर है, एंड नथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर. क्योंकि इसका एक भाई कहीं कत्तर वत्तर में है, उसकी गृहस्थी बस गई है. उस माई ब्रदर करती रहती. मैंने बोला उसका तो घर बसा हुआ है. व्हाट कैन यू डू? यू आर जस्ट एन एक्स्ट्रा फिटिंग इन हिज लाइफ. क्या बहनें जैसे ये मर जाएगी, लुढ़क जाएगी, पूरा उसको मिल जाएगा. तो वो नखरे करता रहता है थोड़ा सा. ही इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ मी. आई सेड घंटा इज़ बिकॉज यू गॉट करोड्स ऑफ रुपीज़, दैट्स द रीज़न वाई. वो थोड़ा सा नाटक नखरा करता है. नॉट दैट ही हैज़ लिट, इवन ही इज़ गॉट प्लेंटी, बट वाई नॉट. बेवकूफ़. who will want to marry such women? Why would they want to marry such a disgusting female? ना लुक्स है, ना खाना बनाना आता है, ना तुम्हारे अंदर कोई ब्यूटी है, ना ग्रेस है, ना स्किल्स है. सिर्फ बस पढ़े है. बस एक नौकरी थी तुम्हारी, वो भी अभी तुम रिटायर हो, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, बस उतना. आई डोंट नो हाउ हर हाउस विल बी. आई रियली वंडर. वो जिस तरह के कपड़े पहनती थी ना, बातें करती थी, आई डोंट थिंक. पूछा मैंने सर्वेंट है, नहीं है. मैंने बोला सत्यानाश फिर तो. There is another Turkey couple who's sitting on that bench and he's touching her all over and I don't know what not. आजकल ना मुझे लगता है पार्क बेंच भी एक पॉर्न हब बन के रह गया है. इतनी डेस्परेशन है तो ओयो में जाओ यार, तुम लोग कहीं तो जाओ यार, पार्क को तो छोड़ो. And they're doing it purposely. It's exhibitionism. मुझे अच्छी खासी नींद आई कल. चलो I'll wind up. I'm just giving an example. Why am I giving you all detailed explanation कि कैसा है लाइफ करके, कैसी है चीज़ें. I'll just have my herbal tea and light snacks today. That's all. Take care of yourself. Love you all a lot. Bye.